So difference between while loop and do while loop is what? If in while loop, if your condition is false, there is no statement is executed. In do while loop, if your condition is false, at least one time your statement is executed. The difference between while loop and do while loop is what? If your condition is false, at least one time your statement is executed. In while loop, if your condition is in do while loop, if your condition is false, there is no statement is executed in the while loop. So let's, if you would write first write the syntax first, then I give you note. डू व्हाइल को आके प्रिंट कर दो सर, माने जो The difference between while loop and do while loop is that if condition is false, there is no statement is execute in while loop. In do while loop, if condition is false, at least one time the statement is executed. Okay, at least one time the statement is executed. So write it. सरलेस Okay, so now we go for the example.
ଆମେ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାନେ କେତେ सात पाँच तीन सुन 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 सुनते ଚାରି ବାଟ चार तीन आड्रेस रे आसुबा आपनकर मते କହିଥାନ୍ତୁ ସିରି ଦେଖେଇଲେ फ्री रे भी किसी देखालेन से रोड में चेक करले So it is a program. Suppose here I define suppose int a is equals to 100. Then what it will display? 100 is less than 20. Condition is false. If your condition is false, there is no statement is execute. In while loop, अगर आपका condition false होता है तो कोई भी statement execute नहीं होगा. There is no statement is execute if your condition is false. 100 is less than 20. Condition is false, so there is no statement is execute in the case of while loop if your condition is false. Now in the case of do while loop, check what happens. सर हेलो हाँ कुह ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କୋଉ ଇଏ କରେ प्रिंट कलानी कंडीशन फॉल्स हला ଆଜ୍ଞା अगेन ସେ नाउ ଆगे ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ एटे प्रिंट करिवनी तो बुझी Yes, पालनी कोटा बुझी पाइलनी हाँ सर So now you watch it in the do while loop. तो do while loop में देखिए क्या होता है. सेम कोडिंग सेम कंडीशन में डालूंगा तो यहाँ पर आउटपुट क्या है.
Yes. 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 I'm going to tell you. I'm going to say. Yeah. Yes. I'm going to write down. I'm going to write down. Yes. Yes. These are the right down. This is the item. Huh? These are composed for the right down. Do while loop, int a is equals to 100 is printing you 100, 100 plus 1, 101. 101 is less than 20, condition is false. Hello, sir. हाँ, Sir, sit down. 101 print करियो sir. हाँ, देखो execute अगर देखो तो first 100, first it is printing you 100, 100 plus 1, 101, 101 is less than 20, condition is false. So when condition is false, then what happens? See that? At least one time the statement is executed, but same program when you are using in the while loop, there is no statement is executed. But in the case of do while loop, if your condition is false, at least one time your statement is executed. That is happen in the case of what do while loop. So it is slow. So you just write down it. Write this program speedily. Then I go to the next new concept. Yes, sir. Okay. So next concept
that we are going to cover, that is called the RA concept. Before going to the RA, I just tell you why you are using a RA. हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं INT A, INT B, तो ये क्या होता है ना, इट इज स्टोर द वैल्यू इन ए सिंगल मेमोरी लोकेशन, एक जगह पर ये मेमोरी स्टोर करता है। अगर आप सेम टाइप का वैल्यू मोर देन वन एलिमेंट में स्टोर करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइमिंग you have to use a RA. RA is a collection of data element which is used for initializing the member variable. RA is a collection of data element which is used for initializing the value, but it is having a same data type. So now we have to check it how this RA is helping you for storing the value. अगर एक बात सोच लीजिए, आपका घर में 5 मेंबर है, तो ये 5 जन रहने के लिए हम एक ही छत के अंदर रहते हैं। तो 5 जन अगर 5 जगह पर रहेंगे, एक एक रूम लेकर, सो सपोज इन भुवनेश्वर बानी विहार में एक पापा रहेंगे, सपोज रूपाली स्क्वायर में मामा रहेंगे, तो इट इज नॉट व्हाट रिलेवेंट। एक फैमिली के अंदर अगर आप सब रहते हो, तो यू हैव टू स्टे इन ए वन रूम। अगर मैं एक एक जगह को लेकर खरीद कर वहां पर फैमिली को रखूंगा, तो आपका एक मनी भी जाएगा और जगह के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चला जाएगा। तो आर्य बोलता है अगर आपको सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सेम मेमोरी एलोकेशन में, एक ही मेमोरी में आप सारा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन आपका डेटा क्या है, आपका डेटा जो है वो सेम टाइप का होना चाहिए, तभी जाकर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज आरए। तो आरए में आप अगर सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, देन यू कैन यूज एन आरए। तो 5 इंटीजर वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है, तो आप 5 वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करके एक ही वेरिएबल आप डिफाइन करो, उसमें से आप सारा वैल्यू यहाँ पर स्टोर करो। तो अभी हम चेक करेंगे एक एग्जांपल में, तो कैसे ये आपको हेल्प करेगा। एक स्ट्रक्चर देते हैं, तो वहां पर हम चेक करेंगे आरए का वैल्यू कैसे आएगा।
So let's see the example. Actually ऊपर नहीं हो रहा है. आप एक मैं सिनेरियो एक दिखा रहा हूँ. सपोज एक कॉलेज में एक क्विज कंपटीशन होगा. ये ओपन हो जाता है, दिखाता हूँ. एक कॉलेज में क्विज कंपटीशन होगा. वो क्विज कंपटीशन में एक कॉलेज में वो अलाउ करेगा 5 स्टूडेंट का 5 स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो 5 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ना. एक है नेम स्टोर करेगा, एक है उनका क्लास स्टोर करेगा. तो एक स्टूडेंट का 2 इंफॉर्मेशन, तो 5 स्टूडेंट का 10 इंफॉर्मेशन. इस तरह से अगर हमारा 10 स्टूडेंट आते हैं, ओके, तो इस तरह से अगर हमारा 10 स्टूडेंट आते हैं, सो दैट it is impossible to store all the information. देखिए यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, जो ऑडियो प्ले एक एनिमेशन है, ये प्ले करता हूँ. देखिए अभी एक एक कंडीशन वो ले रहा है. A management of Rockwood High School is organized a quiz competition. A maximum of 10 students from each school are shortlisted. Maximum of 10 students for each school are shortlisted to participate in the competition. The management want to automate the registration process. तो management क्या करेगा ना, यहाँ पर जो registration process है इसको automate करेगा. You have been assigned the task of creating the application that can store the name and mark of the 10 students. तो एक स्टूडेंट का नेम और मार्क हम स्टोर करेंगे. तो इस तरह से 10 स्टूडेंट एक कॉलेज का इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे. तो अभी देखिए, to store these details you need to declare the 10 variable. Okay, so you need to declare the 10 variable. One is mark, okay, another is name. तो 10 स्टूडेंट का नेम और मार्क हम स्टोर करेंगे. तो 10 और 10, तो 10 नेम के लिए 10 वेरिएबल, मार्क के लिए 10 वेरिएबल. So 20 variable for a single college, you have to store the 20 variable. So which is very tedious task. Okay, so if you see that for managing this, it is very tedious tax or very difficult tax. So that if it is increases, if 50 student from 5 school, 50 student from 5 school, then 100 variable you have to define. 100 for name and 100 for marks. Then again it is difficult situation.
तो 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना और 100 वेरिएबल को स्टोर करना, तो ये पूरा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? तो 100 वेरिएबल को तो मैनेज एक ही साथ आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिफाइन एन array। तो array इज व्हाट? तो यहाँ पर array सिर्फ 2 लोकेशन हमने डिफाइन किया, 2 लोकेशन में हम 100 वेरिएबल 100 डाटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। So therefore, in the situation, we need to declare a variable that can store. Okay, so that can store the 100 variable. Okay, तो यहाँ पर without defining the 100 variable, we have to only define the 2 variable. तो 2 variable के अंदर हम सारा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। Got it? सौम्य, विश्वजीत, हितेश, प्रियंका, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ओके, सो व्हेन यू डिफाइन, अभी इसका टैक्स क्या है? देखिए यहाँ पर भी एक दिक्कत है। अगर आप 100 वेरिएबल डिफाइन करते हो फॉर 100 वेरिएबल, यू हैव टू डिफाइन द 100 नेम। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिया, 2 में 100 वैल्यू में स्टोर करूंगा 50-50 करके, तो आप एक एक वैल्यू को कैसे रिट्राइव करोगे? तो एक जगह पर अगर सारा वैल्यू रहेगा तो इसको कैसे कॉल किया जाएगा? सो देयर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर आप 100 वेरिएबल डिफाइन करते हो, 100 वेरिएबल का नाम आपका डिफरेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल में आप 100 वैल्यू स्टोर करते हो, देन इट इज गुड, आपका मेमोरी सेव हो गया, लेकिन कॉल कैसे करोगे? तो 2 में 50-50 होकर स्टोर हो गया। तो इससे आई को जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो ये एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। जैसे कि आप मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ स्क्रीन में, मैं कॉलर ले लेता हूं। देखिए यहाँ पर एक आरे का वैल्यू हो गया, यहाँ पर मैंने आरे डिफाइन किया, इस आरे में हम वैल्यू को करेंगे। एक सेकेंड, okay, so it is a, here I define a single variable, okay, so a single लोकेशन में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ पर 10 स्टोर होगा, देखो ये सब एक एक लोकेशन है, 10, यहाँ पर 20 स्टोर होगा एक लोकेशन में, इस लोकेशन में स्टोर होगा। व्हाइट शेयर करता हूँ, थोड़ा थोड़ा व्हाइट,
एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में इसको व्हाइट बोर्ड में कैमरा लेकर इसको दिखाऊंगा क्योंकि इसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ओके मैं इसको रिपीट करूंगा ओके तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपसे शुरू करूंगा मंडे केळीला काढली